Okay. So in previous class, there was a mistake while writing the Parsevals. Please correct that, just which I wrote on the group also. Suppose you have a function which is fx is equal to summation n is equal to 0 to infinity an cos nx plus bn and sine of nx. Okay, suppose this is the function, then the Parsevals is given by, so please be careful about it. Suppose the range was from minus pi to pi, and then you want to write the Parsevals. So, so this is the Parsevals for this function, for this range. So everything should be taken care, because if you change the series here, so the coefficients will also change. So fx is equal to summation n is equal to 0 to infinity and a cos nx plus bn sin nx. This is the Fourier series, and this is the range given, the range. Then if you write, don't forget to put this coefficient, which I probably forgotten in yesterday's class. Will be minus pi to pi. So this 1 by pi, don't forget. And here you will have fx whole square and dx. And this side you will find summation. So the first term, which is a naught, it will be 2 times a naught square. Please see this carefully. And plus summation n is equal to 1 to infinity and an square plus bn square. Okay, so if there was any mistake regarding this, इसको जरा correct कर लो अपने कल के question में. So what was the question? Can anybody tell what was the function which we got as a Fourier series yesterday? Fx is equal to, what was that? Mod X. No, I think we did for minus mod x. Yesterday we did for minus mod X, but for the Parsevals we solved mod X. Mod x, okay. So we solved mod x minus pi, and so can you tell me what was the coefficient? What series I took? I took this series or a naught by 2? A naught by 2. Okay. So this a naught is actually first term, right? This a Yes, sir. naught is, so if this was the series, मैंने उसमें a naught by 2 लिया था, तो a naught by 2 की वैल्यू क्या आई थी इसके हिसाब से उस केस में? 1 by 2. तो वो पहला टर्म क्या आया था? व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म? The first term was 1 by 2. तो इसके हिसाब से वो a naught हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Because a naught is first term here, and there it was a naught by 2. So I wanted first term. First term will be same. I have told you. In both cases, there is no difference for first term. The value of a naught may differ in first case and second case, but the first term will remain same. So the value of first term is half, and the value of bn I guess is 0, right? Yes, sir. bn 0, and the value of an, what is the value of an? Minus 4 upon n square pi square. Minus 4 upon n square pi square for
n is equals n to is all. equal to 1, 3, 5, right? Yes, sir. For n is equal to 1, 3, and 5. So this is the coefficients. So let us write this Parseval's for it. So we will be getting 1 over pi minus pi to pi mod of x square dx. This will become x square, and 2 times a naught square will be 1 by 4 plus summation n is equal to 1 to infinity an square, which will be 16 by n to the power 4 pi to the power 4. Yes? Is that okay? Now what we will do this side? This side it will become 1 over pi and 2 times 0 to pi x square dx, Sir? right? Yes? Right. Hmm. So the period was -1 to 1, not minus pi to pi. For that we have calculated this an. जो an आया था वो -1 से 1 के लिए आया था, Yes, sir. तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा फिर we are Yes. doing it for -1 to 1, okay? Yes. -1 to, and here I will write 1 and here I will write -1. जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, -1 to 1, right? ये तो मैंने माइनस पाई से पाई के लिए लिख दिया, and here we will get 0 to 1, right? Yes, sir. So what we are going to get is, and here it we will get 1, so it will be 2 times 1 by 3, right? So we will get 2 by 3. Yes, sir. And this is 1 by 1 by 2. So this will be 2 by 3 minus 1 by 2. 1 by 6. So what we will get here? 4 minus 3 by 6, which is 1 by 6. So you will get 1 by 6 here on the left hand side with this, and this side से क्या आ जाएगा? Pi by 4, pi to the power 4 over 16, and this equal to summation n is equal to 1 to infinity 1 by n to the power 4, right? Okay, everything is coming in the view now. So can we write the series? What is 16 into 6? (96), and this will be 1 plus 1 3. So this we should write clearly, na? 135, right? So 3 5 dash dash dash. So this is the series that you get using the Parsevals. Please check this. यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर से ये एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया पार्सेवल्स का. Again we have completed one question, one complete on Parsevals.
Now can I erase this? Can I erase this all? Yes, sir. Okay. Now I request you all to solve questions and ask doubts. Do all the previous year questions you have. You will be able to solve any of because we have done it together. Okay. Just कुछ स्टेप्स में जो प्रॉब्लम आएंगी वो आपको अब हैंडल करना पड़ेगा. सारे स्टेप्स को ओपन करके आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे. ठीक है ना. अब जरा एक मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं जो कि दैट विल बी यूज्ड एवरीवेयर इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स, including many chapters of Fourier transformation, including uh, chapters, some concepts of electromagnetic theory also. Okay. So in all of these cases, a function is used that I want to introduce you, and that function is known as Dirac delta function. Dirac delta function. Okay. So इस फंक्शन का आपने तो सुना ही होगा और आपने ये भी देखा होगा कि आप कोई भी ब्रांच पढ़ रहे हो उसमें ये फंक्शन किसी ना किसी में आ ही जाता है. राइट. सो इस फंक्शन को हमें बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए. इट इज ऑल्सो अ फंक्शन लाइक एनी अदर फंक्शन. लाइक यू हैव अ फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स. ये भी एक फंक्शन है. एफ एक्स इज इक्वल टू सी. ये भी एक फंक्शन. तो एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन. ओके. डेल्टा फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन. तो पहली बात तो ये है कि लेट अस नॉट मेक इट टैबू की ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज है और ये समझ में नहीं आएगा या जहां पे आ जाए तो अक्सर हम थोड़ा सा हैवी फील करते हैं वेन एवर इट इज इंट्रोड्यूस्ड. बट इफ वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली you will see this is even simpler function fx is equal to x or fx is equal to constant. So what is this function, how it comes into picture and where it is used? I'll tell you everything. So आपको ये बात तो पता ही होगी कि हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर लिए डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हैं. ठीक है. लाइक पोटेंशियल है. Potential suppose represents the interaction between the two particles or the system in which a particle is trapped. इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है. सो विद दैट कम्स कि आपको डिफरेंट फंक्शंस चाहिए पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए. पोटेंशियल नहीं है तो एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन चाहिए. पोटेंशियल कांस्टेंट है यूनिट एफ एक्स इज इक्वल टू सी. पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज कर रहा है यूनिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली डाई कर रहा है यूनिट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स. सो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का नॉलेज होना तो ये कोई अलग से नहीं पढ़ाएगा आपको. बट जैसे जैसे फंक्शंस आते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. ये सारे फंक्शंस की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए धीरे धीरे करके. ठीक है. तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट जब भी वो कहीं अपीयर हो यू शुड सिट एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दैट फंक्शन, प्रॉपर्टीज, उसका ग्राफ, एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड. ओके. सो डिराक डेल्टा फंक्शन कैसे अपीयर होता है दैट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू. सो सब ये
x axis है and this is fx, okay, and I have a function that is constant like this, and its value is say 1. For simplicity I can take 1 or I can take 10 also, but 10 is ultimately 1 into 10, so इसलिए 10 लेने की जरूरत नहीं है, 1 is enough, okay. So I will take fx is equal to 1, and this is the function that is constant between point A and point B. So this is the function that is constant between point A and point B. So suppose I write this as the the width of this. So let me represent it by 2 points, say x0 and x1, because they are on x-axis. And this width, इसकी चौड़ाई, इसको मैं a ले लेता हूं, इसलिए मैंने ab नोटेशन हटा दिया because I want to use them. और इस हाइट को मैं b ले लेता हूं. So इसको फिर से मैं जनरलाइज कर रहा हूं. I am writing it b. Okay, this can be a number, this can be 1. I'm writing it as b. So what will be the area of this region? Can you tell me? A into B. So what is the area under curve? Is it that difficult? इसको निकालना क्या इतना मुश्किल है? It is A into A B, into B. and let me take this area, the shaded region, is equal to 1. मैं एक 1 यूनिट एरिया ले लेता हूं, ठीक है ना. तो सपोज A इंटू B का जो प्रोडक्ट है जो कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1. अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इसको छोटा करना चाहता हूं और एरिया को कांस्टेंट रखना चाहता हूं. सो मैं चाहता हूं कि A बहुत छोटा हो जाए, A goes to 0, that means it becomes very very small. तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, आप बात को समझना, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा A goes to 0. और उस केस में अगर मैं एरिया कंजर्व रखना चाहता हूं तो B की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी होगी. सो B को मैं लिखूंगा मैथमेटिकली, it will become very large. Do you understand this? So what I mean is, let me explain you that if A becomes very very narrow, तो इसको मैं 10 to the power -5 ले लेता हूं. It is like A going towards 0 because it is going towards very very small quantity. Then the value of B will have to grow to 10 to the power 5 so that this remains 1. So when I say mathematically something goes to 0, that means it is going to very very small value. And when I say something goes to very very large, that means infinity, that means comparison to this, it is going to a very large value, that I am taking 10 to the power 5 and still area is 1. This is the meaning of this. Then what will happen? इसकी चौड़ाई बहुत छोटी हो जाएगी बट इसकी हाइट बहुत लार्ज हो जाएगा. Yes or no? And this is again A and this is again B, and still the shaded area here was equal to 1, and still the shaded area is equal to 1. This is same fx under this limit, and this is the x-axis. And now suppose इसको x1 x2 कह दो, मैं जरा x0 नोटेशन रिजर्व करना चाहता हूं किसी और चीज के लिए, तो इसको x1 x2 कर लो.
नाउ सपोज जब स्क्वीज किया तो इसका जो सेंटर आया, सपोज दैट इज एक्स नॉट, सो वो यहां रह गया। Yes, sir. भाई कहाँ तक बताया था? मैं तो पढ़ाता ही चला जा रहा था, वो तो बाई चांस मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, मैंने कहा ये तो आ ही नहीं रहा है। सर आप होगी बता तुम। रहे थे ग्राफ के बारे में। सेकंड वाला ग्राफ। यस सर। ये सब बता दिया था क्या? नहीं सर, सेकंड सर वाले आप ग्राफ को एक्स आप नॉट एक्सप्लेन कर रहे इंट्रोड्यूस थे। किया था सेकंड ग्राफ में। और मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ। आजकल आप लोग बोलते भी बिल्कुल कम हो, शान शान से रहते हो, तो पता भी नहीं चलता है कि सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये बता दिया था ना कि अ, इसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये चीज बता दिया था, व्हाट इज जीरो व्हाट इज इन्फिनिटी। यस सर। हाँ, सर सेकंड ग्राफ में आप एक्स नॉट पे थे। एक्स नॉट बता दिया था ना कि इसका यस। सेंटर है यहाँ पे, जो अब यहाँ पे पहुंच गया, और भी एरिया 1 है, और इस फंक्शन का नाम डिराक डेल्टा फंक्शन। दिस फंक्शन इज नोन एज डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके। यस सर। तो इस फंक्शन को, भाई डिराक डेल्टा फंक्शन भी तो फंक्शन ही है। सो दिस फंक्शन जो यहां था, अगर उसकी लिमिट में a को बहुत छोटा कर दूं, b को बहुत बड़ा कर दूं, सो दैट कि एरिया 1 ही रह जाए, तो इसको लिखने का तरीका है डेल्टा फंक्शन x माइनस एक्स नॉट। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द डिराक डेल्टा फंक्शन, x ये किसका फंक्शन है, और x नॉट इज द लोकेशन। So under this circumstance, the function x becomes a Dirac delta function, and ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें प्रॉपर्टीज पता ही है तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जस्ट इसकी लोकेशन पे एरो बना लो, ये डेल्टा फंक्शन। इज दैट ओके? दिस इज डेल्टा फंक्शन। जस्ट एक एरो बना दो, या फिर और आल्सो क्या करते हैं कि जस्ट एक ऐसे बना देते हैं। दिस इज ऑल्सो डेल्टा फंक्शन। यस और नो? एंड जो थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग तो सा बनाते हैं, और वो थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, और वो ऐसे शेड करके लिखते हैं कि इसका एरिया 1 है और इसकी लोकेशन एक्स नॉट। दिस इज ऑल्सो डेल्टा फंक्शन। ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट सेम थिंग। Under this transformation, this function becomes a delta function. Is that okay? So if you have any question in mind, you can ask. This will be used again and again and again everywhere in physics. Anything you want to ask? Yes? कुछ भी नहीं?
You all are there? Yes, sir. Money? Any question? No, sir. अब जब मैंने कहा कि इसका एरिया 1 होता है तो कोई भी लिमिट ले लें एक्स नॉट के लेफ्ट और राइट, अगर मैं यहां से यहां इंटीग्रेट कर दूं इस फंक्शन को, तो आंसर कितना आएगा? 1 आना चाहिए, बिकॉज इस लिमिट में जो एरिया है, सो हाउ वी कैलकुलेट एरिया? वी राइट द फंक्शन, फंक्शन यहां है x माइनस एक्स नॉट, देन वी राइट dx. सो अगर मैं x नॉट से थोड़ा लेफ्ट और x नॉट से थोड़ा राइट चला जाऊं, जहां पे एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, ये बात समझ रहे हो? x नॉट से थोड़ा लेफ्ट और x नॉट से थोड़ा राइट, तो ये आंसर इज इक्वल टू 1 आएगा, बिकॉज इसका एरिया डेल्टा फंक्शन 1 है. और सेफ साइड के लिए यू कैन राइट, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करूं तो कहीं तो मिल ही जाएगा ना डेल्टा फंक्शन. हाँ, तो ये आंसर भी कितना होगा? 1 होगा. ये सबसे प्राइमरी बात है डेल्टा फंक्शन के बारे में, which comes from the definition that area was equal to 1. It comes from the definition that area was equal to 1. तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार यूज होगी डेल्टा फंक्शन के बारे में. एरिया ऑफ डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू 1. इज दैट ओके? यस, Yes, sir. ऑल ऑफ यू. एक बार ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछो. वरुण, ध्रुवी, Yes, sir. if there is any doubt. And second property that I want to do is, this was the first property. Second property that I want to do is integral minus infinity to plus infinity fx delta function x minus x naught and dx is equal to f of x naught. This is the second most important property. And this is very, very obvious. Why I am saying so? Because delta function हर जगह 0 है except at x naught. Is that sentence correct? Delta function is 0 everywhere except at x naught. Yes, sir. तो ये इंटीग्रल हर 0 होता रहेगा, और जैसे ही x नॉट पे पहुंचोगे ये तो एक कांस्टेंट बन के बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल से, और इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो जाएगी एफ एक्स नॉट. So if I write integral minus infinity to plus infinity e to the power x delta x minus x naught dx, then we are going to get e to the power x naught. Understand this properly. Because fx naught. इसी तरह से कोई भी और फंक्शन आप ले लो, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स डेल्टा डेल्टा x minus 2 dx. What will be the answer? And let me write the integral as minus 0.5 to 2.5. What will be the answer?
Tell me. Sine 2. Sine 2. The answer will be sine of 2. Correct? So this is the fundamental of delta function, and अभी मैं डेल्टा फंक्शन में धीरे धीरे करके थोड़ा और एडवांस लेवल तक आपको सिखा दूंगा। जितना भी डेल्टा फंक्शन यूज होता है कहीं भी, वो सारा मुझे आपको सिखा देना है, ठीक है? whatever delta function is used anywhere, आप ये सोचो कि इन एवरी एग्जाम, किसी भी एग्जाम आप नाम ले लो, मैं सबका प्रीवियस ईयर कराऊंगा, चाहे वो जैम हो, चाहे वो जेस्ट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो। जो टॉपिक्स कॉमन है, द बेस्ट वे इज कि हर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लो उस टॉपिक के, बिकॉज इन प्रीवियस ईयर से अच्छे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो जैसे मैं जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स जब नेट में भी आ रहा है, गेट में भी आ रहा है, टीआईएफआर में भी आ रहा है, जेस्ट में भी आ रहा है, तो इधर उधर क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा है कि ये सारे क्वेश्चन पहले लगा लो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सब में तो मैच नहीं करता, कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं उनके तो हम नहीं लगा सकते, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा कॉमनैलिटी है, तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स। सो हम हर एक एग्जाम के क्वेश्चन लगा लेंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब इसमें क्या आएगा कि कभी एफ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, कभी डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, कभी क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शन आ जाएगा, जैसे डेल ऑफ, यहाँ भी जीएक्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ही सारी चीजें आती रहेंगी और हमें वो सब हैंडल करना सीखना है, ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। आज की क्लास यहाँ पे इसलिए स्टॉप करनी पड़ेगी कि मैं नेक्स्ट बिल्कुल कंटिन्यूटी में वो सारी प्रॉब्लम्स कराना चाहता हूँ कि जब मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पे फंक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ मान लो साइन एक्स होगा अंदर तो क्या होगा। बाकी आज की यहाँ तक की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No. Okay. Then we'll continue with this in next class. Okay. Chalo. Thank you. Thank you, sir.